unfortunately from the last few days, again the situation is very serious due to the pandemic, and the lockdown was imposed once again, and we are come back to the online mode. I hope that all of you have given your examination, all the MCQs which you have faced in your paper number 8, which I have covered, I think, were up to your control. I think all of you have got the better marks. Now, as per your BSc scheme, it is consisting of 6 semesters. 1 and 2 you have already covered. Third we have seen. You have faced the examination, and now you are in the 4th semester. Actually, if this pandemic is not there, then you have already completed second year, that means 4th semester also. चौथा भी सेमिस्टर हो गया होता, लेकिन क्योंकि हालात वैसे हैं, इस वजह से आप लोग जो है एक 6 महीने पीछे चल रहे हैं, isn't it? तो खैर कोई बात नहीं, जैसी हालात नॉर्मल होंगे हम दोबारा जो है हमारे रेगुलर मोड में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस बात की इजाज़त है कि ऑनलाइन हो तो हम इस मरतबा ऑनलाइन प्रोसेस पे जा रहे हैं। Actually, few of the lecturers have already started the lectures, but due to the unlike conditions in the family, it was not possible for me to conduct the period at that time. But anyway, I will try on my level best to cover our portion within our stipulated time, isn't it? So we are going to the 4th semester now. So let me share the screen. Can you see the screen, please? Yes, sir. So now this is, yes, sir. Yes. So this is our 4th semester, isn't it? And for this our 4th semester, first of all, in the introductory period, I will try to discuss you about the syllabus of this 4th semester, and then we will go for our regular lecture. Now, if you can see the screen, you found that in this our semester 3 we have already covered paper number 201, 202, 203 and 4, isn't it? ये हो गया हमारा ऊपर का, जो मेरा कर्सर जहाँ से घूम रहा है। अभी चौथे सेमिस्टर में अगर आप चले आए तो कोर्स फिजिक्स 205, पेपर नंबर इज 11th. डू यू रिमेम्बर आवर नंबरिंग ऑफ द पेपर्स? पेपर नंबर इज 11 and its title is General Electronics, and this paper will be covered by my colleague, as you know, in the 3rd semester, who has conducted this mathematical, statistical physics and relativity. The same lecturer, same teacher will go for the General Electronics. So you are requested to contact him, whatever the mode of communication is possible for you, so that he will start the period whether online or he may take as per his convenience offline. Now, next 4th semester 206 code, paper number is 12th. Am I correct? And it is solid state physics. It is solid state physics, and that paper inshallah will be covered by myself on Thursday, Friday and Saturday, isn't it? And remaining 207 and 208, these are 2 practicals. These practicals will be covered as usual by Rais sir and Shafi sir convently, and they will see what is to be done if the situation is like this, and how online demonstration is possible. We will see in the course of time. But for time being, we are not going to touch to the practicals. Here we are going to see about the theory only. तो 206 नंबर का जो है कोर्स कोड का 12वां नंबर का पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इंशाल्लाह वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आगे। कैन यू? Yes, sir. चलिए। Yes, sir. Yes, paper number semester 4, it is unfortunately 4 here. It is 3rd paper, General Electronics का जो पेपर है, this paper will be covered by my colleague, as I have told you.
Now the paper number 12th is the solid state physics, isn't it? And this paper code is 206, and that is the paper number 12. There, in that particular paper, 4 chapters are there. सॉलिड स्टेट है बोले तो सॉलिड स्टेट में अपने को क्या पढ़ना पड़ता, जैसे सॉलिड स्टेट एक फिजिक्स की ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं आप, ट्रांजिस्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है, जो कि कंप्यूटर की जो है तो ग्रैंड मदर है। उसी तरह सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ते हैं हम, सॉलिड बॉडी बोलते ना आप, तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं, बॉन्डिंग है, सॉलिड के प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड लिक्विड गैस हुआ ना हमारा, तो वो सॉलिड स्टेट है ये। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये जो पेपर है, पेपर नंबर 12, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इट हैज these articles, as I will not repeat the articles, just you please see at your own. Then second chapter is bonding and band theory of solids. It has few articles. Third chapter is thermal properties of solid. And fourth chapter is free electron theory of metals and transport properties. So these are the 4 chapters which are allocated for our paper number 12th, and we have to cover these chapters in this semester, for which you have to go for the examination after 2 or 3 months later. Have you got this one? May I go next, please? These are the reference books available. If you come to the college in the next few days, if you want to refer the books, because we don't know whether the examination is as per the theoretical or once again it is MCQ, that will depend upon the situation. But if you consider that just examination is just in the MCQs mode, जैसा कि अभी आपकी previous exam हुई, ऐसा ही समझ के अगर हम चलते हैं तो आपको जो है क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी, MCQs जो हम देते हैं क्लास में, जो अपन एक्सप्लेन करते हैं वो भी देखना पड़ेगा, साथ में कुछ अलग अलग किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि MCQ जो भी आए आपके लिए उसकी आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे हमारे पास डिपार्टमेंट अपनी लाइब्रेरी जो है उसमें किटल की बुक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो 7वां एडिशन है, किटल की बुक है अपने पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। उसके बाद अपने पास फंडामेंटल ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय सक्सेना गुप्ता सक्सेना, जो कि प्रगति प्रकाशन की है, इट इज आल्सो अवेलेबल. सो फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी. You may please go to the library when the time is allowed to you to go and take the books if you want to read. Then coming back to the original topic. May I start now? Are you getting, please? Yes, sir. May I start? Yes, sir. So now matter. All of you are familiar with this word matter, isn't it? Madda in Urdu you are calling. It is consisting of 3 parts: solid, liquid and gas. Am I correct? ठोस माय गैस जिसको आप बोलते आए हैं स्कूल के पीरियड से. The solid, it is also divided into 2 parts: crystalline and non-crystalline. The another word for the non-crystalline is amorphous. Have you heard this crystalline? If you remember your chemistry practicals, आपने एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल निकालने का प्रैक्टिकल किया कि अभी तक फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर के कुछ बिगिनिंग में? डू यू रिमेम्बर? टाइट्रेशन ही करे होंगे केमिस्ट्री में. दूसरा वो एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, आपको जो है कागज में कुछ ऐसा सैंपल देते, केमिस्ट्री का एक कंपाउंड देते, आप उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट लेते. हुआ क्या बोलिएगा प्लीज, इंटरेक्ट विथ मी. केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल हुआ क्या एसिडिक रेडिकल निकालने का, बेसिक रेडिकल निकालने का? प्लीज अनम्यूट. हुआ. आपको सैंपल दिए होंगे. यस सर.
और वो सैंपल में आप पहली टेस्ट लेते, पहले शुरू आप क्या टेस्ट करते कि क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है कि हाइग्रोस्कोपिक है? Yes, sir. आता है यार सिद्दीकी, महदिया, ऑल ऑफ यू प्लीज, डू यू रिमेम्बर? तो आप पहले शुरू उसको, Yes, sir. पहले शुरू आप हाथ में लेके ऐसा देखते हैं उसको, पाउडर जो आपको जो है लाइब्रेरियन जो है लाकर, सॉरी आपका लैब असिस्टेंट जो लाकर देता, आप उसको ऐसा पहले शुरू, पहली टेस्ट क्या लेते हैं आप उसको हाथ में लेके इस तरह से करते हैं, मैं करेक्ट? ऐसा करते ना? ऐसा करने के बाद अगर आपके हाथ को अगर खुरदुरा खुरदुरा लगा तो आप पहली टेस्ट क्या लेते हैं? इट इज क्रिस्टलाइन। सॉफ्ट रहा एकदम, जैसा आपने जेली पाउडर है, जैसा अपना टूथब्रश करते हो टूथ पे वो आता देखो, बाज औक़ात जो है तो पाउडर आता एकदम सॉफ्ट रहा तो उसको आप अमारफस बोलते हैं। और अगर तीसरा एक किस्म रहती कि भाई लाके उसने रखा नहीं रखा अभी कागज में कि वो पिघलना तब वो होना शुरू होता, डिजॉल्व होता हो, मैंने यू ऑपरेट होकर पानी पानी बनते लगता, उसको आप हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। है मैं करेक्ट? तो खास तौर पे अगर आप सल्फाइड जो है, जिंक सल्फेट अगर आपने देखे होंगे आपके केमिस्ट्री लैब में, तो आपको लाकर रखा नहीं रखा उन्हें तो पूरा पूरा पानी हो जाता, उसको आप क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। हाथ को खुरदुरा लगा आपको तो क्रिस्टलाइन, और अगर हाथ को बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम लगा, जैसा अपने चेहरे का जो पाउडर है जो लगाते हैं अपन टॉक पाउडर, वो उस तरह का अगर बिल्कुल वो लगा तो डेट इज कॉल्ड एज अमारफस। तो ये सॉलिड की किस्म है, ये सॉलिड। तो सॉलिड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। फिर अब क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या फर्क है? तो क्रिस्टलाइन किसको बोलेंगे? तो क्रिस्टलाइंस या क्रिस्टल्स आर नथिंग बट इनविज इन, क्या रहता है क्रिस्टल में? इन द क्रिस्टल द एटम्स आर in a regular arrangement or atoms are arranged in a regular periodic arrangement, it is called as the crystal. crystal की खास बात क्या रहती? क्योंकि आपको मालूम है कि हर एलिमेंट जो है तो छोटे छोटे किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। अब जिस एटम के अंदर, सॉरी जिस एलिमेंट के अंदर एटम या मॉलिक्यूल की तरतीब कुछ इस तरह से है कि दे आर पीरियोडिकली अरेंज टू ईच अदर, पीरियोडिकल एरी ऑफ द एलिमेंट्स, yes, periodic array of the particles या periodic arrangement of the atoms or molecule, it is called as the crystal. हीरा, डायमंड, ये क्या है? क्रिस्टल है। क्या बात है जी? एक अपना जो है तो बर्फ जो ये जो रहता थोड़ी देर के लिए गारी जिसको बोलते हैं अपन, गार जिसको बोलते हैं, वो भी अगर आपके हाथ में दिया और एक हाथ में जो है तो आप हीरा दिए, आप किसकी अहमियत ज्यादा पकड़ेंगे? डायमंड की पकड़ेंगे आपको। क्यों? इन केस ऑफ डायमंड इट इज कॉस्टली नो डाउट। क्यों? हीरे का है बना हुआ, बना इसको बोलते ना आप। लेकिन क्या खास है उसके अंदर? इन द क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज रेगुलर एंड पीरियोडिक। समझ में आ रही क्या बात मैं क्या कह रहा हूं? कि आपके नहीं समझ में आ रही बात? प्लीज मुझे यस नो कुछ बोलिएगा। Yes, sir. हाँ, तो क्रिस्टल किसको बोलते हैं? क्रिस्टल इज वन इन विच द एटम्स आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न, जिसके अंदर एटम्स की तरतीब रेगुलर और पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब वक्फे वक्फे से, जैसा क्लोरीन, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, ये क्रिस्टल है, तो समझो ऐसा सोडियम फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद कुछ फासले के बाद फिर सोडियम फिर क्लोरीन, फिर अभी देखेंगे हम आगे। इस तरह की अगर पीरियोडिक यानी वक्फे वक्फे से और बिल्कुल वेल डिफाइंड अरेंजमेंट अगर रही तो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। अगर आप रेगुलर रोड में कॉलेज को आए तो हमारे पास क्रिस्टल लेबोरेटरी है, आपने कभी देखा भी होगा, विजिट किया भी होगा, या नहीं किया तो कभी आगे आकर विजिट कीजिए। लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल वी हैव ग्रोन इन द आवर लेबोरेटरी, isn't it? So such type of regular arrangement of atoms or molecules, it is called as crystal. और जिसके अंदर रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है बल्कि एटम्स की तरतीब बेतुकी है, रैंडम अरेंजमेंट है। समझ में आ रही बात? द सॉलिड इन विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए रैंडम मैनर, बेतुकी है, कोई ऐसी तरतीब नहीं है, बेतरतीब फैलाव एटम्स का, इट इज कॉल्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन या अमारफस। और तरतीब का जो है तो फैलाव एटम्स या मॉलिक्यूल का, इट इज कॉल्ड एज व्हाट प्लीज? Crystalline. क्रिस्टल।
क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल। समझ में आ गई बात आपको? क्रिस्टल किसको बोलते समझ में आ गया? क्रिस्टल भी हालांकि सॉलिड की किस्म है, सॉलिड दो इसके ऊपर मुश्तमिल है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। लेकिन सॉलिड में क्रिस्टल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एटम्स की तरतीब कैसी है? बाकायदा है और पीरियोडिक है। और ऐसे सॉलिड जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तरतीब बेकायदा है और वक्फे वक्फे से नहीं है बल्कि बेतुकी है, इस तरह की जो है तो नॉन क्रिस्टलाइन, और जिसके अंदर तरतीब से है वो क्रिस्टलाइन। समझ में आ गई बात? चलो आगे। Yes, sir. नाउ क्रिस्टलाइन, the crystals are also divided into two parts. One, it is the single crystal and another is the polycrystalline solid. अब मैंने आपको पहले आते बराबर एग्जांपल दिया किसकी, कि भाई आपका केमिस्ट्री का लैब असिस्टेंट आपको जो है तो पाउडर ला कर देता और आप हाथ में लेकर इस तरह से हाथ में लेकर उसको क्या बोलते कि ये क्रिस्टल है। तो कौन सा क्रिस्टल है जी? वो Polycrystalline. पॉलीक्रिस्टलाइन। और एक सिंपल मिसाल देता हूं, नमक, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl बराबर है क्या? ये NaCl में दो किस्म के नमक आते, देखो। मोटा नमक आमतौर पे अपन किचन में उसको बोलते हैं मोटा नमक, एक खड़ा रहता उसका, है कि नहीं? अपन जब दुकान Yes, sir. एक जो क्लियर, एक जो खड़ा रहेगा, एक जो रहेगा सिंगल, इट इज टू विल यू विल कॉल एज सिंगल क्रिस्टल। Single crystal. और बाद में उसका जो है तो पाउडर करके जो है तो इसके अंदर आता, थैले उसके पैकेट के अंदर बंद करके अपन बोलते हैं एक पैकेट दो टाटा का। वो कौन से, वो भी क्रिस्टल ही है, लेकिन कौन सा फॉर्म है वो? Polycrystalline. Polycrystalline. So this crystal, it is divided into two parts. One, it is the single crystals, other is the polycrystallines, isn't it? अब सिंगल क्रिस्टल में क्या फर्क है, पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या? हालांकि क्रिस्टल तो दोनों भी है, दोनों जब क्रिस्टल है तो दोनों के अंदर क्या होना चाहिए जी? फिर क्रिस्टल बोलते हैं किसको अपन? ऊपर का देखिए मेरा कर्सर, जिसके अंदर एटम्स की कैसी तरतीब है? रेगुलर और Regular. Periodic. पीरियोडिक। यानी कि जब ये क्रिस्टल की किस्म है तो इन द बोथ केस, दैट मींस इन केस ऑफ सिंगल क्रिस्टल as well as in case of the polycrystalline, the arrangement of the atoms or arrangement of the molecule will be no doubt regular and periodic. But what is difference between now single crystal and polycrystal? In case of single crystal, periodicity of the atom extend throughout the material. यानी कि सिंगल क्रिस्टल के अंदर एटम्स की जो पीरियोडिसिटी है ना, कि भाई सोडियम क्लोराइड, फिर वक्फे पे सोडियम क्लोरीन, तो पीरियोडिसिटी जो है वक्फे वक्फे से जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स का पाए जाना है, या वक्फे वक्फे से जो मॉलिक्यूल या उनके एटम्स के जो रख रखाव है वो कैसा रहेगा? पूरे के पूरे उसके एटम के अंदर ऐसी रहेगा, एक सा रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई क्लोरीन और मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं सोडियम की और क्लोरीन की, सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान पहले जितना फासला था, दूसरा जो मिलेगा दूसरा ग्रुप, तो वहां पे भी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान उतना फासला रहेगा। यानी कि पूरे के पूरे एटम में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान तरतीब, डिस्टेंस, फासला सेम रहेगा, कहीं बेतरतीबी नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं रहेगा। इस तरह का अगर अरेंजमेंट रहा तो वो क्रिस्टल कौन से जुमरे में बैठेगा? प्लीज। Single crystal. That means in case of single crystal, the periodicity of the atoms will be found throughout the material, or it is extended throughout the material, यानी कि पूरे के पूरे मटेरियल में कहीं पे भी उनके मॉलिक्यूल की तरतीब में बेकायदगी नहीं रहेगी या बेवकूफी नहीं रहेगी, बल्कि बराबर पूरे के पूरे मटेरियल एक सा रहेगा। आप हीरे को इतनी अहमियत करो तो बराबर रहता, देखो क्रिस्टल हर जगह से एक साथ दिखता है, यूं देखो, पलटा के देखो, रोटेशन करो, इन्वर्शन करो, कहीं मैं आगे बताऊंगा आपको वो कैसा रहेगा। बिल्कुल कैसे भी देखो आप, सॉलिड जब बना हुआ रहेगा ना, जैसे मिसाल के तौर पर पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट का क्रिस्टल है हमारे लैब में, किधर से देखो, ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, यानी कि उसको आप उसको हम सिमेट्री बोलते हैं, इन्वर्शन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन। तो किधर से भी अगर करके देखे तो उन्हें कैसा दिखता? सेम ही दिखता है। यानी कि थोड़ी देर के लिए सिंगल क्रिस्टल के अंदर एटम्स की जो तरतीब है या उनके एटम्स की जो पीरियोडिसिटी है वो कायम रहती पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल क्रिस्टल। हैव यू गॉट प्लीज? हैव यू गॉट प्लीज?
Yes, sir. Yes, sir. केस ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन, यही सिंगल क्रिस्टल को मोल्डर पेस्टर में कूट के, मोल्डर पेस्टर मालूम है, खलबत्ता, अपने पास जो है अपने ओल्ड लोग हैं जो है तो खलबत्ते में कूट के पान खाते थे, मोल्डर पेस्टर बोलते, उखली एक मॉडर्न किस्म की आती छोटी सी, उसके अंदर जो है तो ऐसा मोल्डर पेस्टर रहता। इफ यू गो टू दी पंचकी यू फाउंड दैट लार्ज मेनी स्मॉल मोल्डर पेस्टर्स आर अवेलेबल। मालूम है ना मोल्डर पेस्टर, पहचानते ना आप? Yes, sir. उसके अंदर एक सिंगल क्रिस्टल डाल के अगर उसको ऐसा कूट दिए तो यही सिंगल क्रिस्टल छोटे 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 में तकसीम हो जाता, लेकिन क्रिस्टल की जो क्रिस्टलिटी है वो बरकरार रहती, वही कूट के आपको जो है तो आपका लैब असिस्टेंट देता। क्या हुआ, ये सिंगल क्रिस्टल काय में तकसीम हो गया, काय में तकसीम हो गया सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन में तब्दील हो गया, लेकिन उसके क्या बने, स्मॉल ग्रेन्स बन गए विथ रेंडम ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दो मॉलिक्यूल्स या दो जो है तो एलिमेंट्स के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान फासला हर वक्त पूरे के पूरे उसमें सेम रहे, कहीं कम रह सकता। देखिए ना, आपको जब वो लाकर देता, आप पहले वक्त हाथ में से लिए तो खुरदुरापन एक आध वक्त कम लगेगा या एक आध वक्त खुरदुरापन ज्यादा लगेगी, लेकिन वो जब बाद में दूसरे हाथ से या थोड़ी देर के बाद आप फिर उठाते तो उस वक्त का ऐसा नहीं लगता। यानी कि पॉलीक्रिस्टलाइन में द ओरिएंटेशन ऑफ द molecules or orientation of the molecule, it is random. So a small number of crystalline grains with the random orientation which are separated by well defined boundaries give rise to polycrystallines. अब सिंगल क्रिस्टल की मिसाल बहुत ज्यादा फेमस है, कौन सी, डायमंड। देखे होंगे ना आपने डायमंड, डायरेक्ट नहीं भी देखने में आया होगा कभी, तो यू माइट हैव सीन इन पिक्चर्स और इन द फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम। डायमंड सिंगल क्रिस्टल की मिसाल है, क्वार्ट्ज, mica, so all these are the examples of the single crystals, while polycrystalline ke metal and ceramics, all these are polycrystallines. Have you understand? May I go ahead please? चलो आगे। Yes, sir. क्या आप इस पोजीशन में है कि क्रिस्टलाइन और नॉन पॉलीक्रिस्टलाइन के दरमियान आप फर्क कर सकते हैं? आपको क्रिस्टल क्या है अच्छी तरह से क्रिस्टल की डेफिनेशन समझ में आ गई कि क्रिस्टल इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का फॉर्म है, सॉलिड ही रहता है, लिक्विड नहीं है, ये गैस नहीं है, बल्कि क्रिस्टल क्या है, सॉलिड ही है। लेकिन क्या चीज है इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, isn't it, is periodic, Regular. and regular. While if the arrangement of the molecule or atoms is not periodic or regular but it is random, it is non-crystalline. Crystal, it is also divided into two parts, single crystal and polycrystals या powder crystal. So in case of single crystal, periodicity of the atoms or molecule extend throughout the material. Examples are diamond, quartz and mica. While in case of polycrystalline, number of small crystallites यानी छोटे छोटे grain with random orientation separated by well defined boundaries are there, and the example of the polycrystalline materials are metals and ceramics. Have you understand clearly now? Because throughout this paper and particularly in the first chapter we have to concentrate mainly on the crystal. So most important thing that I would like to communicate you, that you should have the clear understanding that what is crystal and what is non-crystal, or what is the solid, gas or liquid, or what is the single crystal and what is the polycrystalline material or powder crystal. समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि ये पूरे चैप्टर में और खासतौर पर इस पूरे पेपर में हमारा जो फोकस का पहलू है या फोकस का पॉइंट है वो काय पे है, हम काय पे बात करने वाले हैं, क्रिस्टल पे। क्योंकि सॉलिड स्टेट तो है तो सॉलिड पे बात चलेंगी, और खास तौर पे किसके ऊपर हमारा जो है तो जहन मरकूज रहेगा, क्रिस्टल के ऊपर। अगर किसी को क्रिस्टल के ऊपर रिसर्च भी करना है, जो कि हमारे लैब में होता है, जो हमारी क्रिस्टल ग्रोथ लैबोरेटरी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अच्छी तरह से समझ लें कि ये क्या चीज है। समझ में आ रही है बात आपके? चलो मैं आगे, आप समझ गए क्रिस्टल की डेफिनेशन को। अगर आपको कभी भी उठाकर पूछे कि व्हाट इज द क्रिस्टल, सो आर यू इन ए पोजीशन टू गिव द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल प्लीज? तहरीम, सिद्दीकी, Yes, sir. चलो आगे फिर।
Yes, sir. Yes, sir. चले आए, देखिए इसको बोलते क्रिस्टल। दिख रहा क्या? व्हाट इज दिस? मिसाल के तौर पर ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के ये क्या है कि जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, एटम्स है समझो मिसाल के तौर पर। अब देखो किधर से देखो, देखो ये यहाँ से जैसे दिख रहे वैसे इधर से दिख रहे, यहाँ से जैसे दिख रहे वैसे दिख रहे। समझ में आ रही की बात तुम्हारे? ये जो दिख रहा है डम्बेल शेप, मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए क्लोरीन सोडियम क्लोराइड है समझो, तो सोडियम NaCl, 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 NaCl। देखो तरतीब ठीक है कि नहीं? पूरे कैसा भी करो, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, है क्या? बदल रहा है कि डिस्टेंस वो बदल रहा कुछ? No, sir. No, sir. दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब ये अब ये इधर भी फैले हुए रहेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या इनको आप ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड द सेल पैरामीटर्स, या एक्स वाई जेड भी बोलिए, या ABC भी बोलते हैं। ये इसके क्या कहलाते हैं? ABCD, ये सेल पैरामीटर्स। इनको क्या बोलते हैं आप? एक सेल के तौर पर ये तो तरतीब हुए हुए हैं एटम्स। ये एटम की तरतीब कैसे भी एक साथ दिख रही कि नहीं आपको? कैसा भी करके देखो, आपको बराबर उत्तेज फासले के ऊपर सोडियम क्लोरीन या जो भी है आपको नजर आएंगे। तो ये काय की एग्जांपल है ये? इट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल। और एक देख लीजिए, देखिए जो जब से मैं जिक्र कर रहा ना सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है कि नहीं, मानते कि नहीं आप इसको? सोडियम क्लोराइड अमारफस है, नमक आपका अमारफस है कि हाइग्रोस्कोपिक है कि क्रिस्टल है जी? मेहदिया बोलिए। Amorphous. क्लोराइड अमारफस है। अमारफस किसको बोलते बोला मैं? Crystalline है sir. Crystalline है, it's a sodium. सोडियम क्लोराइड, इट इज द सोडियम क्लोराइड बोलते नमक। Yes, sir. आप नमक को हाथ में लेके देखिए ना, चाहे वो जो है तो एक खड़ा लेके देखिए सिंगल क्रिस्टल का मोटा नमक, जिसको हम अपन घर में इस्तेमाल करते हैं बावर्ची खाने में। मोटा नमक, दो किस्म के नमक लाते हैं, मोटा नमक और पाउडर नमक। मोटा नमक आजकल इस्तेमाल कम हो गया शायद अपने घरों में। अपन जो है जनरली रेडीमेड जो पैकेट आता टाटा का या और किसका पैकेट आता वही लेकर आते हैं, है मैं करेक्ट? तो ये सोडियम क्लोराइड ये क्रिस्टल है। अब देखिए क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड में कौन कौन रहता? सोडियम और Chloride. Chlorine. Chlorine. ये ऐसी अरेंजमेंट है उनकी, ये इस तरह से एक दूसरे को पैक है। ये कहीं से भी देखो इनके दरमियान का फासला कम ज्यादा होता है क्या कहीं? बिल्कुल तरतीब से है कि नहीं? इधर से भी देखो एक जैसे नजर आएंगे आपको, है क्या? बदल रहा है कोई? दो क्लोरीन दो सोडियम या सोडियम क्लोरीन के दरमियान का फासला चेंज हो रहा कभी? आपने उसको फिराया भी तो यूं करके देखो, यूं करके देखो, यूं करके देखो, कहीं से भी कैसा है? सोडियम और क्लोरीन के दरमियान फासला सेम है। और अब ऐसा कभी है कि जी कि सोडियम के बाजू सोडियम लगा, फिर यहाँ सोडियम के बाजू क्लोरीन लगा, फिर यहाँ सोडियम के बाजू क्लोरीन लगा, फिर सोडियम के बाजू सोडियम, ऐसा कहीं है कि बेतरतीब दिख रहा है कहीं? नहीं सर। हर तरफ कैसा दिख रहा है? सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, हर तरफ एक सा है। तो सच टाइप ऑफ पीरियोडिक अरेंजमेंट, इस तरह की अगर अरेंजमेंट अगर है तो कौन से जुमरे में आता, कौन से कैटेगरी का पार्ट है हमारे? वो क्रिस्टल। क्रिस्टल। देखिए ये डायमंड, हीरो का देखे होंगे, हीरो का हार वगैरह रहता ना, इट इज डायमंड, ये बात। So all these are the examples of crystal. Have you got this one? Yes sir. So up till now, Yes, sir. what I have seen, have you got? इतना जो मैंने बोला वो समझ में आया आपके? Yes sir. ठीक है? So I will stop here. Now if you have any question, you may please ask. इतना जो है समझ में आया, जो मैंने आपको प्रैक्टिस ये बताया, सिलेबस बताया, फिर आपके साथ ये डिस्कस किया। मैं आज इंटेंशनली 7-1 मिनट पहले बंद कर रहा हूँ लेक्चर, मतलब मैंने उतना ही बनाया था आज स्लाइड आपके लिए, ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आपको कुछ कहना है क्या टाइमिंग के बारे में, या जो है तो तुम्हारे इसके बारे में?